لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو اور پاس والی اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ وہ مسجد والے مسلمان جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ عام کھلانا۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے شروع کر دیا، ہر گھر والے جو ہے نا ایک آدمی کا ٹفن بنا کر کے بھیج دیتے، وہاں پڑا دیتے، اس کو کھانا بینک کہتے ہیں لوگ، اور وہاں ایک ملازم کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ یار بھائی 2 آدمیوں کا کھانا، تو وہ سیدھے سیدھا پیکٹ بنا ہوا ہوتا، لے لیا، پوچھتے نہیں کون ہے تو، کہاں کا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ کئی عورتیں، کئی مرد مجبور دیر سے آئے، بیچارے کام کرنے والے، کھانا پکانے کا وقت نہیں، جا کے لے آئے، اور گھروں سے کھانا پک کے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ لوگ تیار کرتے ہیں، دیتے ہیں، کھلاؤ، گھروں میں خوب برکت ہوگی، کھلانے کا مزاج بناؤ، جماعتوں میں نکلو، کھلاؤ۔ یہ ہماری جماعت بہت سے گجرات کے بعض صوبوں کے متعلق ہم جو بیرون ملک کے کارگزاری سنتے ہیں، ان کے یہاں دسترخوان 24 گھنٹے جماعتوں میں لگا رہتا ہے، ہر وقت آج آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے پہلے اس کو کھلا پلا رہے ہیں، پھر بات کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ان جماعتوں سے اتنا کام ہو رہا ہے کہ حیران ہے سب۔ جی جزاک اللہ، اگلی جماعت چھاپی زون میں چھاپی کی جماعت چھپیر کی جماعت ہے، ہمارے 12 ساتھی تھے اور سب پرانے ساتھی تھے۔ کون سے زون میں؟ چھاپی چھاپی ہلکے کی چھاپی زون میں کون سا علاقہ؟ اچھا نام، یہ کتنی مسجدیں تھیں اس میں؟ چار مسجدیں تھیں اور 7 والے کھانے جیسے ٹینٹ میں کتنی جگہ ٹینٹ ڈالا؟ ٹینٹ ہم نے نہیں ڈالا نا، جو بچھا کر ٹھنڈی کا موسم نہیں تھا تو نیچے کاٹ بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی ٹینٹ لے نہیں گئے؟ اب کیا میں ٹینٹ ہے؟ سردی نہیں تھی اس کے موسم میں، نہیں، سردی کے لیے نہیں ہے ٹینٹ کس نے کہا سردی کے لیے؟ خبر نہ ہوا جیسے وہ کیا ہوا مانگو تو کہیں نہ دقت۔ ارے بھائی بات، ایک جگہ پر آپ نے ٹینٹ ڈالا ہے، ہر اجنبی پوچھے گا آپ کون سے، پوچھے گا کوئی بھی مسلمان غیر مسلم وہاں سے گزرے گا آپ کون؟ اب ہر ایک کے سامنے جماعت کا تعارف آئے گا، غیر مسلموں کے سامنے بھی آئے گا، آ لوگوں پد یاترا کرے سے، آ لوگوں کو کھاتا نہ تھی پوتا نو رہے سے، لوگوں پر محنت کریں سے، مسلمان ہوگا دوسرے کون سا مسلمان بھائی ہوگا، دعوت کہتی ہے۔ اور ٹینٹ جب ہوتا ہے تو آدمی کا اپنا چھوٹا سا بنا دیا گویا گھر بن گیا ہے، تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ پنڈال میں ہے نا، اور سب کہتے ہیں نا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، پر جو انہیں ٹھیلی پڑی ہے اتنی ہٹے نہیں، میری جگہ ہے، جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹینٹ تو لے جانے کا اور ٹینٹ لگانے کا یہ سردی گرمی کی وجہ سے نہیں ہے، جس موسم میں بھی جاؤ ٹینٹ کا حساب سے ہم جہاں بھی رکتے تھے راستے سے ہمیں جگہ جیسی لوگوں کی چلت پھرت رہتی تھی، وہاں جگہ پہ ہم وہ ٹاٹ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹاٹ لے کر جانے کا، اور میں ثابت کرتا ہوں ثابت
अगले को तो बहस मत कर दो जी में तुम अपने दलाल को मैं अपने दलाल ના ના મોટા ને મેં सबसे बड़ा आखिरी बात दे ये देता है कि कि बता के ये देता तय हुआ है कि जोर की हाँ जमात को न्यूज़ कैद कहता लेकर जाना है। ये खोटा रोटा दिया हूँ अभी ना क्या हुआ मतलब यहाँ मौका जमीन नहीं का होने के बाद खोटा नहीं मार्केट वाले 15 दिन बोलेंगे नहीं अंदर कैद अपना होना चाहिए। चलो कितने लोगों की तश्कीलें हुई? हमें तस्वीर को बहुत सारी रखी हुई तो इसके अंदर 4 साथी दिल्ली के अंदर तैयार है अभी आए हुए हैं और 10 साथी इस्तेमाल के अंदर 3 दिन लगाने के लिए आए हैं। नहीं आप मानुस गाँव के घर मानुस गाँव जी हाँ मालिक को नहीं जहाँ से कोई नहीं है वहाँ मस्जिद मदरसा वहाँ पे कुछ लोग आए वो दूसरी जमात को हाँ, लेकिन आपको मालूम होगा ना उस गाँव में फिरे हो। ना वो मेरे ख्याल से ये हमारी जमात अगली हमारी हिदायत भूल गई। वो ये है कि इज्तिमा से 2 दिन पहले पहली जमात दूसरी जमात दोनों जमा हो जाए और जमा हो करके उस मजमे को लाने का फिक्र करें। ये शायद नहीं हुआ। चलिए अगली जमात आओ कह देते ज्यादा से ज्यादा मतलब मैंने कोई मतलब દુબળો પાતળો ને શું કરો છો મારે હું ખાવું છે તમે એમ કહેતા કે મોટો તમે જરા તો શું કરો છો મારે હું ખાવું આ દુનિયા સહેજ એવી છે કે હારે જે કહેતો હું પેલો હોત તો સારું પેલો કહેતો હું આવો હોત हमारी 10 साथियों की जमा थी हमारी 25 बस्तियां दी गई थी इसमें 22 बस्ती में कयाम किया और 3 जगह पर हमने तंबू डाला और मस्तूरा से 3 जगह पर हमने बात की। ये इसी जमात अच्छा ये बताओ वहाँ से कितने लाए? वहाँ से साथी ने बताया कि 8-9 साथी आए और बाकी चिल्ले के 4 साथी आए। नहीं नई जगह से कोई नहीं लाएगा नई जगह से कौन से बाकी तो कुछ जगह पे मौलाना फोन उठाने गए अपने को जाना चाहिए। हाँ तो वहाँ साथी बाइक लेके गए थे माशाल्लाह और वैसा में हम माशाल्लाह गए थे वहाँ पे खेतों में जाके थे तो सांप जैसा कि आसत में मुलाकात हुई और मस्तूरत में हमारी जो 3 जगहों में बात हुई तो एक जगह पे 18 मस्तूरत हुई और एक जगह पे 20 और एक जगह पे 7 मस्तूरत हुई और उनके घरों में जाके उन्होंने फिक्र भी दिया और एक साथी ने इमरान भाई करके वक्ता के अंदर हमारे साथ 5 दिन वक्त लड़की लगाया और 6 साथियों ने 2 दिन का वक्त लगाया और जो साथी की तश्कील हुई थी 40 दिन की उन साथियों ने आधार कार्ड का जेरोक्स लेने का तो तश्कील करके जो आधार कार्ड और बच्ची जगह कलमा हमने 32 जन को कलमा पढ़ा कलमा सिखाया जी और कुछ सही भी करवा 32 जन और ज़्यादा बड़ा काम हुआ बहुत बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जमात चली टोटल किलोमीटर 100 किलोमीटर चली और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 किलोमीटर चली और मुलाकात के लिए पैदल गई टोटल मुलाकात के लिए खाली तो 74 किलोमीटर 74 और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात के लिए साथी चले यानी एक दूसरे से दूसरी बस्ती के लिए 18 किलोमीटर और 3 जगह पे हमने तंबू डाला और हमारे साथ नमाज पढ़ने वाले साथी जो जुड़े थे 115 थे और हमारे साथ तालीम में जुड़ने वाले साथियों की तादाद 13 थी। चलो अगली जगह पर रात जोन में दूसरा की जमात जल्दी आओ भाई जल्दी करो दूसरे राउंड में साथी वेटिंग कर रहे हैं अब कितने जोन बाकी है वहाँ मैं नवे आवेगा दो जोन यानी 4 जमा कितनी बस्तियाँ दी थी आपको 15 बस्तियाँ दी थी 11 में कम हैं 15 में मस्जिद वाली भी थी मस्जिद एक ही मस्जिद थी और 4 मदरसे कौन सा गाँव इथरा जो
कितने लोगों का कलमा ठीक कराया आपने? 50-60 लोग। और कोई नई जगह पर आपने अजान नमाज शुरू कराई? अजान नमाज तो नई जगह पर तो कोई शुरू नहीं करे, मगर जहाँ मदरसे थी वहाँ तरकीब चलाई है, वहाँ थी। मगर जब मदरिस होता है तो कुछ फिक्र होती है, मगर जब मदरिस चला जाता है तो फिर वापस छुट्टी हो जाती है। अभी तक वहाँ मकातिब चलते हैं। तो वहाँ तो मदरस हर वक्त रहते हैं, कभी कोई उर्दू की वजह से कहीं छुट्टियाँ वगैरह से चले छुट्टियों जाते में न हो तो। वो मदरसे कितने साल से चल रहा है? 2 साल। तो उनकी हाजिरी में कुछ नमाजी होते हैं? हाजिरी में कुछ नमाजी हो जाते हैं, जब गैर हाजिर होते हैं तो फिर अजान भी नहीं होती। अजान की होती है। पैदल कितना चले? सामान के साथ चले वो 70 किलोमीटर और मुलाकात में 180 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 16 किलोमीटर। अगली जमात आओ। ईसा की दूसरी जमात। आपकी जमात ईसा की थी? तुम लोग तो पहले आ जाते थे, तुम्हारी कारोबारी तो कुछ होता है। फराज जो है, फराज शहर में आपके जिले को फराज को जो कुछ काम हुआ, फराज शहर को छोड़ करके बहुत जबरदस्त काम किया। तफसील आनी चाहिए, क्या करें। ये जहाँ गए सब जगह गया, इसके अलावा कोई जगह वहाँ से मजमा कुछ लाए आपके साथ? ठहरे हुए था, बिल्कुल नए हैं या फिर खराब वगैरह थे? आबाद बस्तियों के हैं या बंजर बस्तियों? आबाद बस्तियों के। इससे पहले कभी ना आया वो आदमी इज्तिमा में, ऐसे कितने आए? जाने वाले उनको संभाल लीजिए, उनको अपने साथ रखना, खाने में, पीने में, तालीम में, बयान में, हर चीज में उनको अपने साथ। चलिए अगली जमात। वाचोल में मोहनवास की जमात। वाचोल जोन में वाचोल में मोहनवास की जमात। दूसरे राउंड के तस्वीर तैयार है। मुकालत खबर है क्या? पहले हम सब चलो आप बताओ कितने देहात थे? हमारे 19 देहात में, उसमें 8 देहात में काम किया। 19 में से 8 में काम किया। यानी उसको मस्जिद वाले कितने थे? 4-5 मस्जिद है। ये आपका वक्त तो मस्जिद वालों में गुजरा या जहाँ मस्जिद नहीं थी वहाँ गुजरा? नहीं, 8 देहात पूरा, 7 देहात पूरा होने के बाद कुछ हादसे की वजह से आगे से मना कर दिया था कि आपको देहात में काम नहीं करना। कौन सा इलाका है? कौन सा गाँव? वाचको लिखा है। नाने लगी ये रखने। समझ गया। फिर इसके बाद कहाँ ठहरे, कहाँ काम किया आपने? फिर वाशो डायरेक्ट हमें वाशो में भेज दिया गया। वाशो मस्जिद में 12 दिन गए। वहाँ क्या हुआ, कितनी तश्कीलें हुई, कितनी नकद जमा? वहाँ पहले तो 4-5 दिन फिर भी हमने देहातों के काम किए, खेत वगैरह के। फिर अलवाड़ा 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ की मुलाकात के लिए गए थे। फिर दूसरे 5-6 दिन 4 महीने की मेहनत की। इसमें 4 महीने के मकामी साथी तो साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनको तरगब देकर नाम वहाँ पहले जुड़ हो चुका था, तो हमने नाम निकलवा कर सबको तकसीम कराया और मुलाकातें कराई। लेकिन मुलाकातों में 2-3 मरतबा मुलाकातें हुई कि साथी की 2-3 मरतबा मुलाकातें हुई। कोई कह रहा ईशा में आ रहा हूँ, मगरब में आ रहा हूँ। 18 घर मानुस है, ऐसे 100 घरों की बस्ती है, लेकिन 18 घर मानुस है। तो 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, कोई शक्ल नहीं थी। जो गैर मानुस आप कह रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो सुनते हैं बात? वो मकामी साथी ने हमारी मुलाकातें नहीं कराई मुझसे। ये बात उनका मकामी साथी जो होते हैं वैसे खेतों में जाते थे तो उसमें चाहे मानुस हो गैर मानुस हो, सबकी मुलाकात करते थे, वो सब सुनते हैं। सब सुनते थे। आपके दिमाग मुस्लिम दूसरे कितना मजमा है? हम तो बस्ती में ज़्यादा काम नहीं किया इसलिए। चलिए अगली जमात। वासु से
तो आखिर में किसी और जगह जाता है। हमने वो भी कहा था कि मैंने कहा कि आपको रोड हुआ है मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ सारी मुलाकातें जबरदस्ती सभी सारे जो नाम लिखाए है जेल में वो सारे जबरदस्ती और शर्मा शर्मी में लिखा है, बाकी कोई अपने खुशी की तैयारी नहीं है। तो आपके आपका कमजोरी है, आपने क्यों उससे कहा कि तुमने नाम लिखाया था और खुला था खुला, तुम्हें जाना है उस पर मेहनत क्यों नहीं, करो? हमने तो जिसकी मुलाकात की इससे कुछ भी नहीं कहा, वो हमें ऐसे डरा रहे थे कि जिन्होंने नाम लिखा है वो शर्मा शर्मी, मैंने कहा शायद शर्मा शर्मी लगा लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करा उनसे। हर बार उनको उसूल करके आपकी दूसरी जमात में उनको उसूल करके लाना चाहिए। चलिए अगली जमात में। धानेरा जोन में हमने काम किया। हमारे 10 साथी थे, 18 जगह दी गई थी, इसमें 2 मस्जिदें थी, 3 मदरसा, 5 और 12 जगहों पर हमने टेंट लगाया। ये टेंट वाले देहातों का क्या हाल? टेंट वाले देहातों में साथी बहुत सारे साथी मानुस नहीं है, दावत के काम से दिन के ईमान। तो अगर मानूस होते तो मस्जिद होती है। वहाँ पर हमने जो सेरा गांव में हमने इसमें कितने लोगों का कलमा ठीक कराया आपने? हाँ, करीबन 20 लोगों का। कितने लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी? नमाज पढ़ी होगी करीबन 10 साथियों ने नमाज पढ़ी हमारे साथ। सिया गांव में हम गए थे, मीर बिरादरी थी, वहाँ पर 6-7 लड़के थे 12-13 साल की उम्र के, उनको हमने कलमा सिखाया, उन्हें हमारे साथ रखा और कलमा सिखाया, नमाज सिखाई उनको नमाज पढ़ना भी नहीं आता, किस तरह रुकू करना, किस तरह सजदा करना। बड़ी उम्र के एक चाचा थे दिलावर भाई करके, उनकी भी हमने मुलाकात ली, उनको कहा, उनके घर पे भी गए मुलाकात के लिए, लेकिन उनको नमाज पढ़ना भी नहीं आता था। और कहा कि नमाज पढ़नी हमारे पर फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। कितने आदमियों का कलमा ठीक कराया? 20 के करीब। 20 के। पैदल कितना चले? पैदल 91 ज्यादा से ज्यादा 11-12 के। चलो अगली जमात आओ। 18 बस्तियाँ दी थी, तो इंशाअल्लाह सब बस्तियों में कायम हुआ है। और ये इनको जो दी वो वही बस्ती और उनका कायम जो तुम्हारा कम हुआ, इनका सब में हुआ। ये दूसरी जगह दूसरी दूसरा दौर में वही कायम सब जगह हुआ। हाँ, मस्जिद और मदरसे कम थे। और वहाँ से कितना मजमा लाया होगा? मजमा तो अभी वो जो मदरसे थे वहाँ से लोग आए हैं, लेकिन वहाँ जो दूसरी बस्तियाँ थी मतलब वहाँ फ़ोन कर दिया है, आज वो सब आने वाले हैं। मन पर आ जाए कहा था कि हम निकले हैं। ऐसे सुधरेले लोग हैं। इतना वो कहते हैं कि हम आने के लिए तैयार है, तो तुम साथी अपने रोक लेते हर बार उनसे रास्ता करोगे। पैदल कितना चले आपको? पैदल 100 किलोमीटर चले और खेतों में मुलाकात में जाते थे, कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जो खेतों में रहते थे वहाँ पर आपकी मुलाकात। जमात तो कैसा रहा? हाँ, बस सब कुछ थे माशाल्लाह, और सब चलने वाले थे तो पैदल चलकर मुलाकात के लिए खेतों में जाते। जमात मुजाहदे में तकलीफ में उसमें होती है कि दीन का काम कुछ और है। दीन के काम में जितनी तकलीफ पड़ती है इतनी आदमी को मजा आता है, लज्जत बढ़ती है। इसलिए दौर की जमात में मुजाहदे के ज़माने में अल्लाह खूब याद आता है और अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा होता है। तस्जिया लोगों का ये है कि हम साल से जमातों में जा रहे थे, लेकिन जोन की जमातों में जो लज्जत और जो कैफियत बनती है वो दूसरी जमातों में नहीं बनती। अमल होते रहे आपकी तारीख में? अल्हम्दुलिल्लाह सब होते हैं सब। चलो अगली जमात अब है। देखो भाई दोस्तों, किसी भी चीज को तय करते हैं कि ये करना है तो फिर अल्लाह उसको आसान कर देता है।
आदमी सामने एक निजाम बनाता है कि साहब ये करना है। दुनिया में ये सारी जो सहूलतें, ये सड़कें जो है वैसे नहीं बनी, उसको तय किया गया। पहाड़ों के अंदर में जो रास्ते बने हैं वैसे नहीं बने। ये दुनियादारी की चीज है, किसी भी चीज को तय करना पड़ता है, सब ये है, फिर उसका सवाब उस आदमी के हिस्से में आता है। दुनिया में तो नाम होता है, कुछ दिनों के लिए कुछ लोग टोल टैक्स से लेकर के फारिग हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आदमी के अंदर में ये हो कि कोई खानदान मेरे हिस्से में आ जाए, कोई गांव मेरे हिस्से में आ जाए। खानदान अपने हिस्से में आ गया, उस खानदान के एक आदमी को अपने दीन में लगा दिया, अब उसके जरिए से उसके बच्चों में और उसके पड़ोसियों में दीन फैलना शुरू हुआ। अब ये जब तक दीन रहेगा वहां तक जिस पहले आदमी ने मेहनत की उसके हिस्से में आ गया। ये खानदान गोया उसने कमा लिया, किसी बस्ती को उसने कमा लिया, किसी बस्ती वालों को तय कर दिया और बस्ती वालों ने को दीन पर डाल दिया, ये उसके हिस्से में आ गया। पता नहीं हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हम पर हमारे लिए कोई दुआएं करती है या नहीं करती, लेकिन ये तो अपना हिस्सा है। दो चीजें याद रखो दोस्तों, दुनिया की मालो दौलत जो है ये हमने से कोई अपने साथ अपने कब्र में लेकर नहीं जाए, कितना भी वो चाहता हो, कितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन एक एक करके मौत के वक्त में सब कुछ हमसे छीन लिया जाए। ये तय। ऐसी ही दूसरी बात क्या ये है कि दीन के लिए हमें सुभान अल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, कोई दीन का काम किया, किसी को जमात में लगाया, किसी को सही रुख पर डाल दिया, ये नेकियां हमारे घर वाले और पूरी दुनिया मिलकर हमसे छीनना चाहे तो एक नेकी छीन नहीं सकती, वो सारा हमारे साथ ही जाएगा, इसको कोई नहीं ले सकता। दुनिया हम चाहेंगे तो नहीं ले जा सकते, आखिरत के आमाल पीछे वाले सारे कोशिश करेंगे तो उनमें से एक वो छीन ले। ये आदमी की अपनी कमाई, प्राइवेट कमाई, जिसमें किसी का हिस्सा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी अपनी नमाज हम पढ़ते हैं, हमें पढ़नी है नमाज, कोशिश करनी है, लेकिन हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई ये तो अल्लाह जानता है। हमारी नमाज कसूरों से भरी हुई, अल्लाह कबूल फरमा ले, उसकी मेहरबानी। लेकिन दूसरे पर मेहनत करके आपने उसको नमाजी बना दिया, अब उसकी नमाज उसने जैसी भी पढ़ी होगी लेकिन आपके हिस्से में मकबूल आएगी। इस पारी को खुदा करे समझ लो। दूसरे को आपने असर की नमाज में किसी को लेकर आए, उसने और हम दोनों ने साथ में पढ़ी, हमारी नमाज पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल हुई नहीं, लेकिन उसको हम लेकर आए हैं, उसने जैसी भी पढ़ी होगी लेकिन उसकी मकबूल नमाज का सवाब हमारे हिस्से में। तो ये करने की चीज। अब जोन की जमातें तो फारिग हो गया अगले साल तो, लेकिन इन बस्तियों को हम कब तक पालते रहे? बंजर 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 बंजर, एक सरफेरा खड़ा हो जाएगा उस बस्ती को खड़ा कर देगा। दुनिया में आप देखो ना, सारे मेहनत कारोबार वगैरह हो रहे हैं, हर एक ने एक गाँव में, आपके गांव में ये क्या कपड़े धोने का क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग मशीन, पाउडर, जो पाउडर लेकर हर गांव में अलग अलग गाड़ी आती रहती है बिल्कुल लेकर, और वो हर एक ने अपना एक रोड बना दिया। अच्छा, बस्ती वाले भी इंतजार करते हैं, चलो भाई साहब चलो छापी वाला या आवे એટલે, हालांकि रोज आते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन चलो छापी वाला आवे से बराबर, चलो पालनपुर वाला आवे से बराबर ना भाई, चलो हर एक ने अपना एक जगह बना दिया। क्यों? मेहनत किया, लोगों के साथ अखलाक से पेश आए, सही माल दिया, लोगों को यकीन, हर एक कर रहा है दुनिया के लिए, हर मेहनत कर रहा है, फैला रहा है अपनी दुनिया। हम दीन के लिए कोई जगह नहीं, एक हम थोपे और 10 साल से हम कह रहे हैं, आप जब तक ठानोगे नहीं वहां तक, आपके करीब में, मैं नहीं कह रहा हूं दूर जाओ, आपके करीब में देखो, कितनी जगह ऐसी जगह जहां आप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं।
اس کے لیے ہر آدمی اپنی ذات سے طے کرے، پھر اپنی مسجد وار جماعت کو پوچھے بھائی یہ کرنا ہے، مسجد وار جماعت ساتھ دے، گاؤں ساتھ دے گا، لیکن ایک آدمی تو کھڑا ہونا چاہیے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، مجھے ایک بستی مولوی صاحب مشورے سے دے دو، آئندہ سال ہونے تک میں محنت کروں گا، اللہ سے مانگوں گا اور وہاں اذان نماز کو زندہ کروں گا۔ اب اس کو لاوے مسجد وار جماعت میں، اللہ کا شکر ہے مسجد وار جماعت ساتھ دے گی، لیکن مسجد وار جماعت پر ڈال دو گے تو کوئی بھی نہیں، یہ بادشاہ کے بہت جیسا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی مجھے اپنی پراپرٹی بنانی، میری آخرت بنانی، اس بستی کو میری حصے میں لینا ہے، یہ ٹھان دے تو اتنا بڑا مجمع ہے، اگلے سال ایک بھی بنجر نہیں رہے گا، اور اس میں تو اللہ کی مدد ساتھ، اللہ کی مدد ساتھ ہے، صالحین کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ اس کے لیے بتاؤ آپ میں سے کوئی کون طے کرتا ہے کہ مجھے مشورے سے ایک بستی دے دو، میں اپنی مسجد وال جماعت اور اپنے گاؤں کو ساتھ لینے کی کوشش کروں گا، ساتھ دے یا نہ دے میں اپنے بل بوتے پر طے کرتا ہوں اور اللہ میرا ساتھ دے گا کہ میں بستی لینے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہو اس کے لیے؟ محنت کریں گے، ہاں مالن جائیں گے۔ اب ایک کام کرو، آپ نے ارادہ کیا، اب اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر ہلکے والے بیٹھو اور بیٹھ کر کے لکھ کر اتنا دو، میں فلاں، ہماری مسجد فلاں، ایک گاؤں ہم انشاءاللہ لیں گے جس میں اذان نماز کو زندہ کریں گے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ گاؤں ہم کو دو تو اچھا، باقی مشورے سے جو گاؤں ہمیں ملے گا ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ مالپور والے کھڑے ہو جائیں، چاروں وہ اس طرف کونے میں جاؤ، چار گالے پکڑ لو، چاروں چار میں ہو جائے، دیکھو دروازے پر باہر لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد